Hello, everyone. Greetings for the day. Good morning. I'm Sayukta from All About Skin Wellbeing team, and I'm sure all of you must be keeping good health. We all know taking good care of our skin is important for more than just our appearance, as the largest organ, our skin becomes the most essential to our overall health. A fungal infection is very common on our skins and nails and scalp. Fungal infections or mycosis are diseases caused by a fungus, yeast, or mold. Mild fungal skin infections can look like a rash, which can be really itchy and annoying. So let's connect today with our skin expert, Dr. Gitanjali Swami, live from Latur, Maharashtra, to enlighten us on the topic of fungal infection. Dr. Gitanjali Swami is MBBS, DDBL, dermatologist at Swami Balrugnalaya and Skin Clinic, Latur. Today, Dr. Gitanjali Swami will share with us on fungal infection. A very warm welcome to you, Dr. Gitanjali Swami. Yes, thank you, Sanyukta, for inviting me to talk on the fungal infections. Hello, everyone. As I said, I'm Dr. Gitanjali Swami, practicing dermatologist and cosmetologist from Latur. So, Yes, and today, Doctor, we are going to talk on a very important topic specifically because, in this weather where it's raining in almost all parts of India, we know that it's very humid, hot, we are sweating a lot, and that's how we get a lot of fungal infection these days. So it becomes even more important to talk about it. So, first of all, Doctor, what is fungal infection and why we are so prone to get it, especially during this season? yeah, this is a fungal infection. So, actually, so I can say fungal infection is a superficial skin infection caused due to the fungus. Fungus is like which we say it is a viral infection or bacterial infection. Like it is a fungus. It is also called as dermatophytosis in our medical terms. Okay, I will tell my patients in Marathi ki it is एक प्रकारची बुरशी असते. ओके, जेव्हा एखादी जागा बऱ्याच वेळेसाठी ओलसर राहते त्यावरती तिथे बुरशी चढते आणि मग बुरशीजन्य आजार आपल्याला अफेक्ट होऊ शकतात किंवा आजार होऊ शकतात, त्याला आपण फंगल इन्फेक्शन म्हणतो. दिस फंगल इन्फेक्शन मराठीमध्ये असं गजकरण असं म्हटलं जातं आणि हिंदीमध्ये त्याला दार पण म्हणतात. ओके, so these are fungal infections as these are prone due to the damp areas or damp places. So this is very common in monsoon or rainy season. So there is very so there are chances the patient got wet. Okay, so there are more chances for the getting these infections in rainy season. Okay. बिल्कुल, हम कई बार बारिश में भीग जाते हैं, वी गेट ड्रेंच्ड इन रेन एंड देन अच्छे से सूखते नहीं हैं, हमारे कपड़े नहीं सूखते हैं, धूप नहीं होती है तो नेचुरली ड्राई नहीं होते हैं प्रॉपर्ली और कई बार चूंकि उनमें मॉइस्चर रह जाता है, हमें भी बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, तो फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसा कि आपने बताया डॉक्टर। डॉक्टर, ये भी जानना चाहेंगे कौन से बॉडी पार्ट्स हैं, कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे ज्यादा चांसेस है कि फंगल इन्फेक्शन हो? Yes. Where there are the body regions, these are more prone for the fungal infections, like groin area. Okay, जहाँ जहाँ पे folds होते हैं, जहाँ जहाँ पे पसीना ज्यादा टिकता है, वहाँ पे fungal infections होने के ज्यादा chances है. Like axillary region, okay, inframammary area, groin area. So I can say की काखेमध्ये, छातीच्या खालच्या भागामध्ये, पोटावर, मांडीच्या तिथे, जांघेमध्ये या या जागेवरती आपल्याला घाम जास्ती येतो आणि त्यामुळे फंगल इन्फेक्शन तिकडे जास्त होण्याचे चान्सेस आहेत. Okay, so these are the more prone areas, but fungal infection can occur at any place, like on the scalp also. So it is called as tinea capitis. डोक्यामध्ये सुद्धा फंगल इन्फेक्शन होऊ शकतं. Like tinea capitis can present with the boggy swelling or the hair loss patches. Okay, then also other body parts
पोटावर, हातावरती, पायावरती, इट कॅन प्रेझेंट ॲट एनी प्लेस. सो दिस इज कॉल्ड एज टीनिया कॉर्पोरिस. अँड ऑल्सो हात आणि पायावरती सुद्धा फंगल इन्फेक्शन येऊ शकतं. ॲज वेल नेल फंगल इन्फेक्शन इज ऑल्सो देअर. नखांचं सुद्धा फंगल इन्फेक्शन असतं. जे लोक कंटिन्युअस पाण्यामध्ये काम आहेत, जसं की हाऊसवाईफ्स आहेत, कंटिन्युअस पाण्यात काम आहे, किंवा फार्मर्स आहेत, शेतकरी, ज्यांचंही काम कंटिन्युअस पाण्यात आहे, शूज जास्त वापरलेला आहे, सो दॅट कॅन गेट फंगस इन नेल ऑल्सो, दॅट इज कॉल्ड एज ओनाइकोमाइकोसिस. बिल्कुल, तो बॉडी में तो कहीं पे भी हो ही सकता है, स्पेशली वहां जहां स्वेट का अक्यूमुलेशन ज्यादा होता है, जो बॉडी फोल्स होते हैं, आर्म पिट हुआ, अंडर आर्म्स है, ग्रॉइन एरियाज है, तो इन जगहों पे ज्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन इसके अलावा स्कैल्प में फंगल इन्फेक्शन और नेल्स में भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। इस पर और ज्यादा हम बात आगे करेंगे डॉक्टर, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी समस्या हमारी सोसाइटी में है, वो है ओवर द काउंटर मेडिकेशन की। हमको कुछ भी होता है, हम डॉक्टर के पास जाने से पहले केमिस्ट शॉप में जाते हैं और बोलते हैं भैया थोड़ा ये फंगल इन्फेक्शन हो गया है, कोई एंटी फंगल क्रीम दे दो, या कोई इन्फेक्शन हो गया है, कोई क्रीम दे दो। तो नॉर्मली हमको पता भी नहीं होता, हम स्टेरॉइड क्रीम्स यूज करने लगते हैं, हम कॉम्बिनेशन क्रीम्स फंगल एंटी फंगल क्रीम के नाम पे यूज करने लगते हैं। और जब चीजें बहुत ज्यादा हमें लगता है आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, तब हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं और तब पता चलता है कि अगर पहले आ जाते, सिर्फ फंगल इन्फेक्शन ट्रीट करना होता तो शायद आसान होता। तो डॉक्टर, इस पर आपसे हम जानना चाहेंगे, आपकी क्या राय है, ओवर द काउंटर मेडिकेशन कितना हार्मफुल हो सकता है फंगल इन्फेक्शन के केस में? Yeah. Yes, definitely. Over-the-counter medications are very dangerous, very harmful for the fungal infection. Okay, so usually क्या होता है कि कुछ फुंसी जैसा होता है, फिर एक पैच डेवलप होता है. सो पेशेंट की नहीं, कुछ नहीं है, थोड़ा ही है, चलो जाते हैं मेडिकल स्टोर पे कि नहीं भैया ये ऐसे हो गया है, हमको कुछ दे दो. सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, मेडिकल स्टोर से कॉम्बिनेशन क्रीम दिया जाता है, दैट इज द स्टीरॉयड कंटेनिंग क्रीम. एक्चुअली उसमें स्टीरॉयड रहता है, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल भी उसमें रहता है, लेकिन द मोर डेंजरस इज दैट स्टीरॉयड कंटेंट ऑफ दैट क्रीम. वो क्रीम यूज करने के बाद क्या होता है, इनिशियली पेशेंट कैन एक्सपीरियंस की नहीं, थोड़ा सा कम लग रहा है, बट दैट इज नॉट द थिंग कि वो रिकवर हो रहा है. एक्चुअली दैट एंटी फंगल प्रॉपर नहीं गया तो फंगस जाएगा ही नहीं. ओके, स्टीरॉयड क्या करता है, स्टीरॉयड क्रीम की वो सिर्फ उसका जो पैच है वो थोड़ा सा अल्टर करता है, वो तो रिकवर करता ही नहीं, कम करता ही नहीं, सिर्फ अल्टर करता है. और जैसे जैसे वो क्रीम कंटिन्यू होते जाएंगे पेशेंट से, तो क्रीम लगाते जाएंगे, वैसे वैसे उसके साइड इफेक्ट ज्यादा हो जाते हैं. तो लाइक जैसे वो मेडिकल का क्रीम है, स्टीरॉयड कंटेनिंग क्रीम है, वो कंटिन्यू किया है पेशेंट ने, तो वहां पे कम होने की वजह वो और रिंग डेवलप होते जाते हैं, डबल रिंग, ट्रिपल रिंग. जैसे कि दार्द में होता है सिंगल पैच, सिंगल रिंग रहता है, लेकिन अगर ऐसे ओवर दी काउंटर क्रीम्स लगाएंगे तो वो डबल रिंग, ट्रिपल रिंग, ऐसे पैच बड़ा बड़ा होते जाता है. और एंड देयर इज आल्सो इरिथमा आल्सो टेलिंग, तो पेशेंट को रेडनेस ज्यादा आता है, इचिंग ज्यादा होती है. फिर जाके पेशेंट को ध्यान में आता है कि नहीं नहीं, ये तो अभी कम नहीं हो रहा है, उल्टा बढ़ रहा है. फिर वो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चले आते हैं. तो एक्चुअली अगर पेशेंट पहले ही आता है, अगर पेशेंट पहले ही डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आता है, तो वो डॉक्टर कैन ट्रीट फंगल इन्फेक्शन फ्रॉम द बेस. ओके, अगर वो कुछ ओवर द काउंटर क्रीम लगा के आया है, ऑलरेडी सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, ऑलरेडी इन्फ्लामेशन है वहां पे, सो डॉक्टर को पहले वो ट्रीट करना पड़ेगा. जो बाहर के मेडिकल स्टोर की क्रीम लगा के जो एलर्जी जैसे हो गया है डेवलप, तो वो पहले कम करना पड़ेगा डॉक्टर को. वो कम करने के बाद ओरिजिनल एंटी फंगल ट्रीटमेंट जो है, या फिर ओरिजिनल फंगस जो है उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा. तो टाइम डबल हो गया इसमें, पेशेंट का भी टाइम डबल हो गया, उसका पेशेंट सफर्ड अ लॉट एक्चुअली, और पूरा इन्फेक्शन कम होने को भी डबल टाइम लगेगा. सो इट इज वेरी वेरी डेंजरस. एंड ड्यू टू दिस रीजन एक्चुअली वो तो है ही कि कम नहीं होता है, लेकिन ऐसे मेडिकल के ओवर द काउंटर क्रीम, स्टीरॉयड मिक्स क्रीम यूज करके करके अभी फंगस को रेजिस्टेंस भी आ गया है.
यानी कि हम जैसे पहले ट्रीट करते थे, जो मोडालिटी थी, जो टैबलेट्स क्रीम थे, अभी उतना वो इफेक्टिव नहीं रहे तो हमको ज्यादा देर तक देना पड़ रहा है, या हमको वो कॉम्बिनेशन देके ट्रीटमेंट करना पड़ रहा है। अगर ये ओटीसी ड्रग नहीं यूज किए तो रेजिस्टेंस भी कम रहेगा और सबका ही फंगल इन्फेक्शन जल्दी कम हो सकता है। बिल्कुल, तो ओवर द काउंटर मेडिकेशन यूज़ करके कई बार हमको लगता है कि हमने देखो वक़्त बचा लिया, हमें डॉक्टर के या पास नहीं जाना पड़ा, हमने पैसे बचा लिए, सिर्फ़ एक क्रीम से हमारा काम हो गया। बट अल्टीमेटली डॉक्टर के पास तो हमें सूनर और लेटर जाना ही पड़ेगा और इस सब में हम अपना टाइम, अपना एनर्जी, अपना मनी ये तो वेस्ट कर ही रहे हैं, अपने हेल्थ को भी रिस्क पे ला रहे हैं। तो प्लीज़ ओवर द काउंटर मेडिकेशन के लिए मत जाइए। गो टू द डॉक्टर एट द वेरी फर्स्ट प्लेस जब आपको लग रहा है कि किसी भी तरह का इन्फेक्शन है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि वो फंगल है या नहीं है, बट इरिटेशन है, इचिंग हो रही है, रैश है, इन्फेक्शन है, प्लीज गो टू अ क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट। और दूसरी बात जो डॉक्टर ने कही जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार इससे एंटी फंगल रेजिस्टेंस भी हो जाता है, वो इस वक्त एक बहुत बड़ी समस्या है। तो उससे भी अगर निजात पानी है तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर ये भी आपसे जानना चाहेंगे, हम ओवर द काउंटर मेडिकेशन की तो बात कर ही रहे हैं कि कितना हार्मफुल, कितना डेंजरस ये हो सकता है। इसके अलावा आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, क्वैक्स हैं, बहुत तरह-तरह के इन्फॉर्मेशन हमारे पास है ऑनलाइन और इतने क्विक फिक्सेस सबके पास मौजूद है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सबके पास मौजूद है। लगता है कि बस ऐसे करो और तुरंत ठीक हो जाएगा। तो कई बार उसमें भी बहुत सारा वक़्त हमारा ज़ाया हो जाता है, तो इनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? होम रेमेडीज़ या कोई दादी-नानी के नुस्खे या इन्फ्लुएंसर ने जो कह दिया क्विक फिक्स, वो करने में भी क्या हम अपना वक़्त ज़ाया कर रहे हैं और क्या उसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? यस, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है या फिर सोशल मीडिया पे जो ही वीडियोस है या उनके जो भी कुछ वो बताते हैं, उनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, स्पेशली यंगस्टर्स में है, या अभी यूजुअली सभी लोगों को सोशल मीडिया इजी लगता है कि उन्होंने ये बताया है, तो चलो डॉक्टर के पास जाने के पहले मैं ये ट्राई कर लेता हूँ, अगर कम हो गया तो बहुत अच्छी बात है, मेरा टाइम भी बच जाएगा, पैसे भी, और उधर जाना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन जो इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस या फिर सोशल मीडिया पे जो नहीं होते, एक्चुअली वो जो आई डोंट नो एक्चुअली कि वो जिस टाइप में बता रहे हैं, एक्चुअली दैट इज नॉट साइंटिफिक एट ऑल। ओके, साइंटिफिक नहीं होता है, इसलिए फिर वो ठीक से बराबर मोस्टली नहीं होगा। और अगर डॉक्टर के पास आएंगे पेशेंट तो उसका प्रॉपर सलाह दी जाएंगी कि ट्रीटमेंट तो दिया ही जाएगा, लेकिन प्रिवेंशन के लिए या फिर क्या करना है क्या नहीं करना है वो भी प्रॉपर तरीके से बताया जाएगा। कैसे होता है कभी कभी घरेलू नुस्खे जो बोलते हैं हम, एक्चुअली अगर दूसरा कुछ है, फेस के लिए, फेस पे प्रॉब्लम आ रहा है तो घरेलू नुस्खे है कि थोड़ा सा क्लीन अच्छे से कर लो, या फिर कोई कोई वो मिल्क यूज होता है या फिर पपाया का पेस्ट, ऐसे कुछ। तो दैट इज समटाइम्स ओके, बट फॉर द फंगल इन्फेक्शन घरेलू नुस्खे भी कौन से कुछ काम नहीं आते, उल्टा उससे फंगल इन्फेक्शन और बढ़ जाता है। और जैसे कि फंगल इन्फेक्शन एक फंगल इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड होता है, दैट इज द स्प्रेडिंग। ओके, सो वो पेशेंट के खुद के अगर एक दो ही पैचेस है तो उनके खुद पे बॉडी पे ही स्प्रेड हो जाएगा, और पेशेंट के वजह से उनके कांटेक्ट में जो है फैमिली मेंबर्स है, फ्रेंड्स है या ऐसे कुछ, तो उनको भी वो ट्रांसफर हो सकता है। तो अगर आप इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होकर ऐसे कुछ घरेलू नुस्खे करते हैं या दूसरा कुछ करते हैं, तो उसमें वो तो कम नहीं होगा, उल्टा वो इन्फेक्शन बढ़ते भी जाएगा और दूसरों को भी वो ट्रांसमिट ज्यादा जल्दी से हो सकता है। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि ऐसे कुछ भी मत करो। सो ऑलवेज इट इज राइट टू गो फॉर अ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड टेक अ प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉर फंगल इन्फेक्शन। फेयर इनफ। डॉक्टर जैसा कि आपने कहा हाईली कंटेजियस है फंगल इन्फेक्शन, जिसे हुआ है उसके भी बॉडी में वो दूसरे पार्ट्स में स्प्रेड हो सकता है, उससे दूसरों में स्प्रेड हो सकता है और हम हमेशा कहते हैं प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो सबसे पहले तो हम क्या करें कि हमें फंगल इन्फेक्शन हो ही ना, और अगर हमारे आसपास किसी को हुआ है, फैमिली में किसी को हुआ है, तो किस तरह से हम अपना बचाव कर सकते यस, एक्चुअली जैसे आपने बोला, एज यू सेड, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर। सो टू प्रिवेंट फ्रॉम द फंगल इन्फेक्शन,
वी कैन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ड्राइनेस, ओके, पर्सनल हाइजीन, क्लीनलीनेस, कि जब आपका जो क्लोथ्स है आप ड्राई रखोगे, वेट नहीं है। अगर समझो रेनी सीजन है, रेनी सीजन में आप भीग भी गए बाय चांस, तो जितना जल्दी हो सकता है उतना आप ड्राई क्लोथ पहन पहन लेने का है। अगेन यू हैव टू इन्फेक्शन अगर हो ही जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो ही जाता है, तो सो वी एडवाइज कि जो पेशेंट है उसके जो पर्सनल सभी चीजें है, उसका सोप, टॉवेल है, उसका सभी कोम है, यानी सो जो भी पर्सनल चीजें वो यूज कर रहा है वो उसको सेपरेट रखना है। और आफ्टर बाथिंग यूजुअली क्या होता है, गड़बड़ में हम आफ्टर बाथ कपड़े पहन के काम पे चले जाते हैं, लेकिन यू हैव टू कंफर्म कि जहां जहां पे जॉइंट्स है या फिर जहां जहां पे पानी थोड़ा सा टिकता है, जल्दी से वो क्लीन नहीं होता, वहां पे आपको अच्छे से वो ड्राई करना है, और उसके बाद ही आपको कपड़े पहन के लेने के हैं। अदर देन दैट यू कैन यूज एंटी फंगल पाउडर्स, ओके, वेयर देर आर चांसेस ऑफ मोर स्वेटिंग, यानी कि अंडर आर्म्स है, और जो लोग शूज कंटिन्यूअसली शूज पहनते हैं, तो वो लोग भी एट द टाइम ऑफ वियरिंग सॉक्स दे कैन यूज एंटी फंगल पाउडर, so that they cannot get the for the fungal infection. And also one more thing is there कि अभी रेनी सीजन है, अगर ड्राई कपड़े भी हम बोलते हैं कि ड्राई कपड़े पहनो, मोस्ट ऑफ द टाइम कपड़े ड्राई होते ही नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम फिर पेशेंट पीपल क्या करते हैं लोग कि नहीं, गड़बड़ में वो पहन लेते हैं, सो यू हैव टू एक्चुअली आयरन इट। एक्चुअली आपको जो है वो या तो कड़ी धूप में उनको सुखाना है, या फिर आप आयरन कर सकते हैं, अच्छे से आयरन करके फिर आप उसको पहन सकते हैं। ओके, सो फॉर द प्रिवेंशन only you have to see whether it is dryness is there completely, and again if you are going outside, okay, gym कर रहे हैं, so there are again chances for the more sweating and chance to get the fungal infections. At that time you should take bath immediately after gym, so that you cannot get the fungal infection. और जैसे कि आप पब्लिक प्लेसेस पे है, तो कैसे घर में कि ये चीजें आप थोड़ा सा कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। जब बाहर जा रहे लोग या फिर मिक्स हो रहे लोगों में, so there are again more chances to get the fungal infections. At that time also you have to take more care about कि जैसे आप पब्लिक वॉशरूम यूज कर रहे हैं, जैसे कि कमोड का सीट है, वहां से ही अगेन you can get fungal infection, there are more chances, so you have to take care about कि उसको सैनिटाइज करना पड़ेगा, या फिर जैसे ही आप यूज करते हैं यू फर्स्ट वॉश योर हैंड्स, ओके। देन ऑल्सो अगर इतना आप प्रिकॉशन लेकर भी अगर फंगल इन्फेक्शन यू गॉट योर द फंगल इन्फेक्शन, देन यू हैव टू कंसल्ट डर्मेटोलॉजिस्ट। अगर फैमिली में किसी एक मेंबर को भी फंगल इन्फेक्शन होता है, तो इमीडिएटली उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अगर उसमें टाइम लग गया तो अगेन दूसरा फैमिली मेंबर अफेक्ट हो जाएगा। सो दीज आर द थिंग्स आई कैन से, these more important for the prevention. एंड इफ ये प्रिवेंशन की चीजें आपने ध्यान में रखी है, उतना थोड़ा सा केयर लेके भी अगर फंगल इन्फेक्शन हो ही गया है, तो उसके बाद जो डॉक्टर बोलते हैं उनके हिसाब से ही ट्रीटमेंट करना होता है, उसका सेल्फ मेडिकेशंस नहीं करना है। कभी कभी वो तो जैसे कि अपना अभी डिस्कस हो गया कि ओवर द काउंटर ड्रग्स, तो वो तो लेने ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी पेशेंट क्या करते हैं, डॉक्टर के पास अगर एक बार भी उन्होंने ट्रीटमेंट कर लिया, उससे थोड़ा सा रिलीफ हो गया है, तो वो खुद के मन से ही एकदम बंद कर देंगे ट्रीटमेंट, या फिर नहीं नहीं मुझे वही टैबलेट से थोड़ा ठीक लगा था, तो मैं वही टैबलेट बाद में लेके आऊंगा, तो वो भी वो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। तो दैट इज अगेन हार्मफुल, तो वो सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। जैसे डॉक्टर ने बताया उससे उसके ड्यूरेशन में ही, उसका ही टाइम से ही आपको टैबलेट्स लेनी है और क्रीम लगाना है।
That's it. बिल्कुल, तो बहुत ज़रूरी बातें आपने साझा की डॉक्टर गीतांजलि, और वाक़ई में ये बहुत ज़रूरी है। एक तो प्रिवेंशन, सबसे पहले हम प्रिवेंटिव जो मेजर्स हैं, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना, कपड़े अगर ठीक से नहीं सूखे हैं तो उन्हें आयरन करके ही यूज़ करना, तो इस तरह की तमाम चीज़ें हैं। अगर किसी फैमिली मेंबर को हुआ है तो फिर चीज़ों को शेयर ना करना, कपड़े अलग होना, ये भी ध्यान रखना है। जिसको हुआ है वो प्रॉपर मेडिकेशन ले रहे हैं कि नहीं, इसका ध्यान रखना। इस तरह मौसम में खास तौर पे जब चांसेस बढ़ जाते हैं फंगल इन्फेक्शन कैच करने के, तब जब हम पब्लिक एरियाज में, जिम में जा रहे हैं, तो भी हम अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखेंगे, तो चांसेस कम रहेंगे। लेकिन फिर भी अगर हो जाता है, प्लीज डॉक्टर के पास जाइए, ट्रस्ट योर डॉक्टर, और जो भी वो प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं उसे पूरा कीजिए। ये बहुत जरूरी है। डोंट सेल्फ मेडिकेट। चूंकि हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से फंगल इन्फेक्शन होता है और किस तरह से कुछ लोग बहुत प्रोन होते हैं फंगल इन्फेक्शन, डॉक्टर, रिकरेंस भी फंगल इन्फेक्शन के चांसेस में होता है। अगर एक बार किसी को हुआ है तो देयर आर चांसेस कि बार बार होगा। तो ऐसा क्यों होता है, क्या किया जाना चाहिए? Okay. So now actually nowadays there are more chances for more cases of the recurrence. So again I will say कि recurrence हो रहा है, तो यानी कि अगर पेशेंट का इम्यूनिटी कम है, ओके, सो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स है, उनका इम्यूनिटी रोग प्रतिकार शक्ति कम है उनका, कौन से दूसरे डिसीजेस है, क्रॉनिक डिसीजेस है जैसे कि किडनी डिसीजेस, लिवर डिसीजेस है, उनमें उनको ऑलरेडी इम्यूनिटी कम होता है, तो फिर वो फंगल इन्फेक्शन जल्दी कम भी नहीं होता और रिकरेंस भी होता है, बार बार होता है। या जैसे कि डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट में भी अगेन वैसे ही इम्यूनिटी कम होता है, वो तो जल्दी कम नहीं होता और बार बार होने के चांसेस ज्यादा है। और अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, जैसे ओवर द काउंटर ड्रग ज्यादा यूज हो रहे हैं, उससे भी रेजिस्टेंस या रिकरेंस उससे भी ज्यादा डेवलप हो रहा है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जैसे अभी मैंने बताया, जैसे पेशेंट inadequate treatment of the patient and this self medications from creams from the medical, steroid creams from the medical, these are the important reasons for the recurrence. एक्चुअली क्या होता है ना, पेशेंट अगर डॉक्टर के पास भी आता है, 1 मंथ का अगर उन्होंने ट्रीटमेंट बोला है, तो 8 to 15 डेज में उसको अच्छा फील होता है, पैच भी फंगल इन्फेक्शन का कम होने लगता है। सो पेशेंट विल थिंक कि नहीं अभी तो मुझे कम है, मैं अननेसेसरी क्यों गोली खाऊं, नहीं अभी मुझे टाइम भी नहीं है क्रीम लगाने के लिए, अभी कम तो हो गया है ना, मैं क्यों क्रीम लगाऊं, लाइक दैट। सो वो स्टॉप कर देता है, पूरी ट्रीटमेंट स्टॉप हो गई, तो उसमें क्या हो गया ना, फंगस पूरा इलिमिनेट ही नहीं हुआ। जो आपको ऊपर का अपर लेयर का दिख रहा है थोड़ा सा कम दिख रहा है, लेकिन पूरा फंगस इलिमिनेट नहीं हो रहा है, तो वो फिर से पैच बनाएगा ही, यानी फिर से रिकर होगा, फिर से फंगल इन्फेक्शन आएगा। तो इसलिए तो ट्रीटमेंट आधी अधूरी कभी नहीं छोड़ने की है। एक्चुअली डॉक्टर्स जो है वो अकॉर्डिंग टू एज, वेट और व्हाट आर लाइक द स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शंस, वो आपको टैबलेट्स क्रीम का डोज डिसाइड करते हैं। तो प्लीज ट्रस्ट योर डॉक्टर्स एंड टेक ट्रीटमेंट, जैसे कि आपके डॉक्टर बोलते हैं वैसे ही ट्रीटमेंट लेना है। बिल्कुल, चूंकि इम्यूनिटी का आपने जिक्र किया डॉक्टर, हमारे कुछ व्यूअर्स हैं जिनके सवाल वीकेंड इम्यून सिस्टम को लेकर है। वो जानना चाहते हैं कि जैसे फारिया बेग है, उनका क्वेश्चन है, is there a way to boost my immune system to reduce the risk of fungal infection during the rainy season? एक और हमारी व्यूअर है सुहाना ठाकुर, उनका भी मिलता जुलता सवाल है कि are there any specific precautions I should take if I have a weakened immune system and want to prevent fungal infection? तो क्या कर सकते हैं इम्यूनिटी बूस्ट करने में, और ताकि हमें इस सीजन में फंगल इन्फेक्शन ना हो? या इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हम मैं वही बोलूंगी कि आपको यू हैव टू फॉलो प्रॉपर डाइट, ओके, हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट आपको लेना है। हरी सब्जियां जिसमें हम बोलते हैं, हरी सब्जियां है, फ्रूट्स है, यू कैन टेक, जैसे आप ले रहे हैं उससे थोड़ा क्वांटिटी और बढ़ा सकते हैं, ओके, स्प्राउट्स ले सकते हैं। सो अगर आप प्रॉपर टाइम पे और हेल्दी न्यूट्रिशियस खाना खाएंगे, तो आपका इम्यूनिटी बढ़ जाएगा डेफिनेटली। और एक बात मैं बोलना चाहूंगी कि खाना तो आप खा रहे हैं, लेकिन नाउ डेज देर देर इज मोर कि फास्ट फूड का भी बहुत है कि नहीं, मुझे खाने से भी अब वो मुझे फास्ट फूड ज्यादा खाने में आ रहा है। तो आई वुड सजेस्ट कि प्लीज अवॉइड फास्ट फूड्स,
please avoid oily things and take a proper healthy nutritious diet so that you can get a good immunity. एंड अगेन डाइट के साथ साथ आपको उसका टाइम भी बराबर लेना है कि कभी आप खाना देर से खा रहे हैं, कभी स्किप कर रहे हैं आपका एक मील, ऐसे नहीं चलेगा। तो प्रॉपर टाइम पे खाना खाना है आपको। नींद भी, स्लीप जो पैटर्न है, स्लीप पैटर्न वो भी आपको ठीक से करना पड़ेगा। टाइम पे अगर आप सोओगे, टाइम पे उठोगे, ठीक से खाना खाओगे, एंड इफ यू डू एक्सरसाइज, ओके, अकॉर्डिंगली, जैसे ऐसे नहीं है कि इस टाइप में ही एक्सरसाइज करने का है, लेकिन अगर आप रोज डेली 30 मिनट्स भी वॉक करते हैं या दूसरा कौन सा डेली एक्सरसाइज करते हैं, देन इट विल डेफिनेटली इम्यूनिटी आपका बढ़ाएगा। ओके बिल्कुल, तो ये कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी है तो हमारा इम्यूनिटी जो है ये बेटर रहेगा। डॉक्टर, ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है फंगल इन्फेक्शन के केस? यस, एक्चुअली ट्रीटमेंट ऑप्शंस में क्रीम भी है, वहाँ पे क्रीम्स लगाने के हैं, अलग अलग टैबलेट्स आते हैं, कुछ पाउडर्स आते हैं और एंटी फंगल सोप भी है। यानी कि जैसे अगर अभी जैसे मैंने बोला कि फंगल इन्फेक्शन अभी तो बहुत स्प्रेड हो गया, बहुत बढ़ रहा है, तो वी आर सीइंग कि बच्चों में भी वो फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, चिल्ड्रन में हो रहा है, एडल्ट में हो रहा है। अगर बच्चों में हो रहा है, बच्चों केसेस में, या फिर एक ही पैच है, सिंगल पैच है, उसका इनिशियल स्टेज है, सो वी विल ट्रीट विद द ओनली लोकल क्रीम्स। ओके, फिर लेकिन उसका प्रॉपर एंटी फंगल क्रीम से ही हम ट्रीट करते हैं। इफ यू गेट द फंगल इन्फेक्शन स्प्रेड ज्यादा है, बहुत टाइम से है, आपको आप सेल्फ मेडिकेट करके आए हैं, तो हमको उसमें टैबलेट्स ऐड करना पड़ेगा। सो अगेन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैबलेट्स, कुछ कैप्सूल्स है, we prescribe it according to the age, weight, and again, if a patient is having any immunocompromised status like diabetes है, hypertension है, और दूसरे कौन से उसके मेडिसिन चालू है क्या, वो देख के हमें हमारा मेडिसिन हमको देना पड़ता है। ओके, सो many times I prescribe और I advise my patient की मैं तो अभी लिख रही हूँ आपको, टैबलेट्स लिख रही हूँ, क्रीम लिख रही हूँ, तो ये अगर इस पे आपका कम भी होता है तो अपना नाउअडेज फॉर द स्पेशली फॉर द रेजिस्टेंस की कुछ क्रीम्स है जो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म अपने को आगे चालू रखने का है। एंड अगेन ऑल्सो आई विल से कि पेशेंट एंटी फंगल पाउडर और एंटी फंगल सोप भी थोड़ा सा कंटिन्यू कर सकते हैं, ताकि वो बाद में री इन्फेक्शन और या रिकरेंस ना हो। राइट डॉक्टर। डॉक्टर, ये भी आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि लगातार हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, टॉपिकल क्रीम्स होते हैं, दवाइयां होती हैं, लेकिन जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं या जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, अगर उन्हें फंगल इन्फेक्शन है तो उनके लिए लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या हो जाता है? यस, प्रेगनेंसी में तो यूजुअली हम टैबलेट्स अवॉइड करते हैं, सो इट्स ऑलवेज बेटर कि टू अवॉइड टैबलेट्स इन प्रेगनेंसी। सो आई विल फर्स्ट से कि फर्स्ट तो क्रीम ही, लोकल क्रीम्स ही उसको प्रिस्क्राइब करेंगे या क्रीम ही लगाने का है। एंड देर आर सम सेफ टैबलेट्स इन प्रेगनेंसी ऑल्सो, बट आफ्टर 3 to 5 months ही हम उनको प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर क्रीम पे बिल्कुल ही नहीं उसका कवर हो रहा है, बहुत वाइड स्प्रेड है, या फिर प्रेगनेंसी, ऑलरेडी प्रेगनेंसी में कैसा उसका इम्यूनिटी कम होता है, लेडी का इम्यूनिटी ऑलरेडी कम हुआ होता है, तो फंगस जल्दी ग्रो होता है। सो अगर लोकल क्रीम पे नहीं कवर होता है तो आफ्टर 3 या 5 months ऑफ प्रेगनेंसी वी कैन प्रिस्क्राइब सेफ टैबलेट्स, और वो भी वेरी मिनिमम टाइम ऑफ पीरियड। और वैसे सेम ही लैक्टेशन का है, लैक्टेशन में भी यूजुअली टैबलेट अवॉइड करते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी से तो ऑप्शन ज्यादा है लैक्टेशन में, जैसे कि आफ्टर द डिलीवरी वी कैन प्रिस्क्राइब द टैबलेट्स इन लैक्टेशन। ओके डॉक्टर, हमारे एक व्यूअर है राहुल, उनका सवाल नेल फंगल इन्फेक्शन और स्कैल्प फंगल इन्फेक्शन से जुड़ा हुआ है डॉक्टर। तो इनमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या बदल जाता है, किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, और क्या इसमें इलाज जो है ये लंबा चलता है बनस्पत स्किन फंगल इन्फेक्शन के? हाँ, नेल फंगल इन्फेक्शन में डेफिनेटली इलाज लंबा चलेगा। नेल फंगल इन्फेक्शन में क्या होता है ना, तो नेल जो है वो वीक हो जाते हैं। ओके, सो हाइपर पिगमेंटेड यानी कि कलर जो है उनका डार्क हो जाता है, कभी कभी ग्रीनिश शेड हो जाता है, वो बहुत वीक हो जाते हैं नेल्स।
ब्रिटल हो जाते हैं, इजीली टूट जाते हैं, या डिसमॉर्फिक होता है, उनका ग्रोथ अच्छे से नहीं होता है। तो अगर हमको वहां पे ट्रीट करना है, फंगस वहां से निकालने का है, तो वहां अपनी दवाई वहां तक जाके उसका एक्शन होने को टाइम लगेगा। जैसे कि अगर हैंड का अपने हाथों के जो है वो नाखून अगर नेल फंगल इन्फेक्शन हो गया है, so we advise ki 3 months you have to take antifungal tablets, as well as there are again nail lotions and nail liquors hai, so many options are there, but you have to take it for long time. And again अगर आपका पैर के नाखून खराब हो गए हैं, उनका फंगल इन्फेक्शन हो गया है, तो आपको उसका 6 months मिनिमम, फॉर 6 months आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। बिल्कुल, हमारी एक व्यूअर है पूर्वी मेहरा, उनका सवाल है कि यदि मुझे फंगल संक्रमण का इतिहास रहा है, तो क्या मैं अब भी बरसात के मौसम में बाहरी गतिविधियों में भाग ले सकती हूँ? किसमें भाग ले सकती हूँ? मतलब बाहर जा सकते हैं या स्विमिंग या दूसरे एक्सरसाइजेस कर सकते हैं अगर फंगल इन्फेक्शन का हिस्ट्री रहा है? ओके, सो अगर आपको एक्टिव फंगल इन्फेक्शन है तो आप फर्स्ट उसको ट्रीट कीजिए, क्योंकि जैसे मैंने बोला था इट इज कम्युनिकेबल, यानी स्प्रेड होता है जल्दी से। तो देर आर मोर चांसेस कि आप अगर कहीं मिक्स होती है तो दूसरों को स्प्रेड होगा। तो बेटर है कि आप जल्दी से ट्रीटमेंट करा के ले। जैसे ही आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दे, विद इन फ्यू डेज फंगस उतना एक्टिव नहीं रहता है। यानी आपका अगर ट्रीटमेंट थोड़ा सा इनिशियल पार्ट में भी है, so then you can join, but not at the time of active disease. बिल्कुल। डॉक्टर, चूंकि हमने स्कैल्प फंगल इन्फेक्शन की भी बात की और हमने देखा है कई बार जब हमारे सर पे किसी तरह का भी इन्फेक्शन हो या डैंड्रफ हो, या कई बार हमें पता नहीं होता कि ये डैंड्रफ है या फंगल इन्फेक्शन है, तो हम हमारे सर पे ढेर सारा ऑयल लगा लेते हैं। वी हैव दिस टेंडेंसी ऑफ पुटिंग अ लॉट ऑफ ऑयल ऑन आवर स्कैल्प, बहुत देर तक उसे रखते हैं और हमें लगता है ऑयल से हमारा जो भी इन्फेक्शन है स्कैल्प का वो ठीक हो जाएगा। फंगल इन्फेक्शन के केस में ऑयलिंग क्या कर सकता है? या एक्चुअली आपने जैसे बोला वैसे है कि अपना है कि नहीं नहीं कुछ भी मुझे हो गया है, स्कैल्प में कुछ हो गया है, तो नहीं तेल कम पड़ गया है, चलो चलो तेल लगाते हैं। जैसे कि माँ बोलती है, दादी नानी अपने को सजेस्ट करती है कि नहीं बेटा तेल ही नहीं लगा रहे हो, तो तेल एक्चुअली अमाउंट बढ़ जाता है स्कैल्प में का। बट दिस इज द नॉट द केस विद द फंगल स्कैल्प फंगल इन्फेक्शन। ओके, आपको अगर स्कैल्प फंगल इन्फेक्शन नहीं है तो हेल्दी स्कैल्प के लिए ऑयलिंग इज मस्ट। बट इन कंसर्न विद द फंगल इन्फेक्शन, एक्चुअली ऑयलिंग जो है ना, तो वो आपका ऑयली स्कैल्प अगर हो जाएगा या फिर ऑयल वहां पे जमा रहेगा तो फंगस डैम्प हो जाएगा, या तो फंगस डेफिनेटली बढ़ जाएगा। सो देर इज अ बिग नो फॉर द ऑयल फॉर फंगल इन्फेक्शन ऑफ द स्कैल्प। एक्चुअली कैसे होता है ना, जहाँ पे वो स्केलिंग होता है फंगल इन्फेक्शन का, जैसे कि सीबोरिक डर्मेटाइटिस ऑफ स्कैल्प है, उसमें भी अगर आप ऑयलिंग ज्यादा करोगे या फिर रेगुलर भी ऑयल अगर आप यूज करते हैं तो वो डेफिनेटली बढ़ जाता है। वो केसेस में वी एडवाइज you do not use oil until you have covered it। पूरा आपके स्कैल्प से फंगल इन्फेक्शन जब भी जाएगा उसके बाद ही आप ऑयल यूज कर सकते हैं। तो ऑयलिंग नहीं करना है, स्पेशली अगर फंगल इन्फेक्शन है। बच्चों में भी बहुत ज्यादा स्कैल्प का फंगल इन्फेक्शन देखा जाता है, तो उसकी क्या वजह होती है और क्या करना चाहिए? ओके, बच्चों में कॉमनली स्कैल्प फंगल इन्फेक्शन बच्चों में कॉमन है। वहाँ पे या तो छोटे छोटे पैचेस ऑफ हेयर लॉस होता है, या फिर वहाँ पे थोड़ा थोड़ा स्वेलिंग जैसे दिख सकता है सिर में। तो वही मैं कहूंगी कि प्रॉपर हाइजीन नहीं रहेगा, या फिर हेयर वॉश जो है फ्रिक्वेंटली नहीं होगा, तो दे कैन कैच द इन्फेक्शंस। ओके, तो आपको वो उसका हेयर वॉश करना है, डेली कर सकते हैं। अगर बच्चों को कोई सा प्रॉब्लम है, सर्दी है या दूसरा कुछ है, तो अल्टरनेट डे 2 डेज को आपको तो हेयर वॉश डेफिनेटली करना है। और एट द टाइम ऑफ हेयर वॉश यू कैन यूज मेडिकेटेड शैम्पूज लाइक कीटोकोनाजोल कंटेनिंग शैम्पूज। सो उससे काफी फर्क हो जाता है। इससे भी आप अगर आपको लगता है कि नहीं स्कैल्प में अभी भी फंगल इन्फेक्शन है, तो दैट टाइम यू कैन यूज एंटी फंगल लोशंस जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। और बहुत कम केसेस में
टैबलेट स्टार्ट करना पड़ता है इन बच्चों के। तो ये तो बात हुई एक तरह से, हम फंगल इन्फेक्शन को लेकर लगातार बात कर रहे हैं और लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोटे-मोटे तौर पे अगर हम बात करें डॉक्टर, तो डूज़ एंड डोंट्स क्या है फंगल इन्फेक्शन पे, खास तौर पे इस मौसम में क्या करना चाहिए, क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए? यस, दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि कैसे होता है ना, कभी-कभी कुछ छोटी-छोटी चीजें ध्यान में नहीं आती या पता नहीं रहता, तो इससे वो थोड़ा फंगल इन्फेक्शन और बढ़ सकता है। तो क्या करना चाहिए बोले तो मैं बोलूंगी कि आपको वही, जैसे कि ड्राइनेस, पर्सनल हाइजीन इज मोर इम्पोर्टेंट। गीले कपड़े नहीं पहनना है, आपको वो पूरा ड्राई करके आयरन करके ही कपड़े पहनने का है। और जैसे कि मैंने बोला कि आफ्टर बाथ यू हैव टू कंफर्म कि पूरा बॉडी अच्छे से ड्राई है कि नहीं, वो यूज करके ही करने का है। देन यू कैन यूज रेनी सीजन में, या फिर जहाँ पे आपको पता है कि मोर स्वेटिंग है, अपने को ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, तो यू कैन यूज एंटी फंगल पाउडर एज वेल एज एंटी फंगल सोप। ओके। और फंगल इन्फेक्शन होने के बाद आपको प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाकर ही ट्रीटमेंट लेना है। आपके पूरे पर्सनल चीजें जो है वो किसी से शेयर नहीं करना है, वो सेपरेटली रखना है। और जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उस तरीके से आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है। बीच में वो ट्रीटमेंट स्टॉप भी नहीं करना है, और खुद के मन से वो आगे भी कोई बीच बीच में लाकर टैबलेट्स या क्रीम्स वो भी नहीं यूज करना है। ओके, सो ये डूज में तो आएगा कि आप प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लो, पूरा पर्सनल हाइजीन ठीक से केयर करो। और डोंट्स में जो है, तो पहली मेन इंपॉर्टेंट जो बोलूंगी कि आपको मेडिकल स्टोर से ओवर द काउंटर क्रीम्स, स्टेरॉइड मिक्स क्रीम्स, वो कभी भी यूज नहीं करना है। और उसके बाद जो है गीले कपड़े नहीं पहनना है। देन जैसे कि ट्रीटमेंट अधूरा नहीं छोड़ना है। बिल्कुल। तो ये वो डूज़ एंड डोंट्स हैं जिनका अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम फंगल इन्फेक्शन से बच सकते हैं, और दूसरा अगर हो जाता है तो वो ट्रीटेबल है, तो हम उसका ट्रीटमेंट ज़रूर ले सकते हैं। चलते-चलते डॉक्टर गीतांजलि, कुछ आप कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? यस, ये अभी जो फंगल इन्फेक्शन का जो अभी जो सब डिस्कशन हो गया है, उसमें मैं एक फिर से वही बात बोलना चाहूंगी कि फंगल इन्फेक्शन नाउअडेज इज वेरी कॉमन। हर किसी को हो रहा है, इन्फेक्शन कैच कर रहा है। अभी जो हम पेशेंट देख रहे हैं, एडल्ट है, ओवरवेट है, उनका बाहर का काम रहता है, स्वेटिंग ज्यादा रहती है, तो उनमें फर्स्ट वो पैचेस आ जाते हैं। अगर वहां पे उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं लिया या फिर थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, तो उनके वजह से फिर फैमिली मेंबर्स को होता है, फिर उनके बच्चों को होता है। ओके, सो तो ऑल फैमिली मेंबर्स गेट अफेक्टेड। देन अगेन ट्रीटमेंट इज आल्सो सो डिलेड। एक्चुअली फिर क्या करते हैं लोग कि सबको हो गया है ना, तो मैडम हम एक एक ट्रीटमेंट दे दो, हम उस एक ही ट्रीटमेंट सब पे को करेंगे। बट इट इज नॉट लाइक दैट। एक्चुअली एक ही टैबलेट, एक ही क्रीम सबको नहीं चलेगा, आपको अलग अलग से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तो ही जाके वो कम हो सकता है। और दूसरी बात, जो जैसे मैंने बोला कि बड़ों से छोटों को हो रहा है, तो अभी क्या वैसे ही छोटे बच्चों से भी बड़ों को ट्रांसमिट हो रहा है। जैसे कि अभी स्कूल से, ट्यूशन क्लासेस, जहाँ भी बच्चे बाहर खेलते हैं, मिक्स हो जाते हैं, एक बच्चे से दूसरे बच्चों को हो रहा है, उसकी वजह से घर में और फैमिली मेंबर को हो रहा है। तो मैं यही बोलना चाहूंगी, घर में जिसको भी फर्स्ट टाइम हो रहा है, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इन केस अगर दूसरों को भी होता है, तो सबका सेपरेट अच्छे से, जैसे ही डॉक्टर के सलाह से ही पूरा ट्रीटमेंट ले लो। और सेल्फ मेडिकेशन इज वेरी डेंजरस एक्चुअली। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं, ये मुझे ठीक से नहीं हो रहा है, या फिर ये ट्रीटमेंट से कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो टॉक टू योर डर्मेटोलॉजिस्ट, टॉक टू योर डॉक्टर कि नहीं नहीं डॉक्टर, मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो डॉक्टर कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, बट डोंट स्टॉप द ट्रीटमेंट इन बिटवीन। ओके, सो जाते जाते मैं यही कहूंगी कि फंगल इन्फेक्शन है, दैट इज सुपरफिशियल, बट अगर आप उससे ठीक से नहीं ट्रीट करोगे, तो बहुत परेशान करेगा आपको। अगर ठीक से ट्रीटमेंट करोगे तो पूरे तरह से वो चला जाए। बहुत अच्छी बातचीत डॉक्टर गीतांजलि स्वामी आपसे हुई, और बहुत अच्छे से आपने समझाया कि क्या है फंगल इन्फेक्शन, कैसे होता है, कैसे हम बचाव करें, और अगर हो जाए तो क्या करना है। So thank you so very much for your valuable time and this very informative session.
Thank you. Thank you very much for giving me this opportunity. Sanyukta, thank you so much. Thank you, Doctor. Viewers, thank you for your excellent participation. For more information and updates on skin health and care, stay connected on our FB page all about skin well-being. We are also available on YouTube, Twitter, and Instagram. Thank you. Have a good day ahead. Goodbye.